Assalamu alaikum ji. I hope you can hear me. If you can hear me, please give me a thumbs up from the reactions on Zoom. This is Chaudhry Fazl Mukim. Thank you, Tahir. And thank you, Amna, and the third person who's joined. We're going to have a party here and celebrate the life and the times of Muhammad Ali Jinnah. I lovingly call him Maj. Many people call him Qaid-e-Azam. His parents called him Mamad, M-A-M-A-D, as we will know about him as we go along. Muhammad Ali Jinnah, let me just give only a few introductory remarks. Then I want to ask you, because a training is not a motivational lecture. Let me be very clear on this. A training is basically a discussion, and the trainer, if I may say, or the facilitator is there to round off the discussion in the right direction. So before I say something else, and before I show you this video about his grandson, but I need to talk to you about Mr. Jinnah and your impressions of him. My core argument for the workshop is there are no superheroes in this world. To many, this might sound controversial. There are no superheroes in this world. However, there are mortals in this world who rise to sublime heights when the challenge demands that they rise. That's my core argument. And that is where in my life, Muhammad Ali Jinnah, Qaid-e-Azam, father of the nation, Mohsin-e-Pakistan. If there was really somebody who was Mohsin-e-Pakistan, then there could not be any better candidate. Asadullah, welcome. There could be no better candidate than Muhammad Ali Jinnah. That is all I want to say about him. I now want to, so what is the Zoom etiquette? The Zoom etiquette is when you want to speak, please put on your mic and say whatever you want to say. If you don't want to speak and you're not comfortable speaking, which is your choice, you can write something in the chat, okay? But my question to you before I take you to this small interview from Mr. Nusli Wadia, who is Muhammad Ali Jinnah's grandson and he's living, before I say anything, I would like to ask you one question. And the question is, आप मोहम्मद अली जिन्ना को क्या समझते हैं? ठीक है ना जी? सवाल बड़ा सादा है, उर्दू में है, और सवाल ये कि आप, आमना, असदुल्ला, ताहिर और अगर कोई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप मोहम्मद अली जिन्ना को क्या समझते हैं? Now you can type into the chat box, you can open your mic and say whatever you want to say. Go ahead, please. जी, अस्सलाम वालेकुम. Tahir here. Are you able to hear me? I can hear you, Tahir. I can hear you. Okay. सबसे पहले आपका और आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया. तो इंशाल्लाह इससे हमें और हमारी फैमिली को और मुझे भी इंशाल्लाह दोबारा एक हमें जिसे कहते हैं रिमाइंड हो जाएगा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत और उनकी जो कौम के लिए जो कुर्बानी और मेहनत थी वो रिमाइंड हो जाएगी. तो मैं भी अटेंड कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरी जो डॉटर्स हैं, छोटी बच्चियां, वो भी ये सेशन अटेंड कर रही हैं. अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली अटेंड कर रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल thank you to you and your team for arranging this. तो जितना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जितना हम जानते हैं ये है कि उन्होंने एक बेलौस खिदमत की और अपनी सेहत को और अपनी चीज़ों को नहीं देखा. उन्होंने कौम के लिए और ख़ासकर मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानी दी, हर तरह से कुर्बानी दी और एक डायरेक्शन दिखाई और हर तरह के लोगों को जो है उस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि आज़ादी कितनी ज़रूरी है और आज़ादी के लिए जो है कुर्बानी देने से क्या फ़ायदा होगा. तो उन्होंने डायरेक्शन दी और खुद उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया. तो बस यही मेरे ख्याल में है. बहुत खूबसूरत बात आपने की है. So let me
टेक दिस फॉरवर्ड. अल्लाह बेटियों की जिंदगियां करे जी, जो मेरी बात सुन रही हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, और अल्लाह बाकी लोगों को भी. इकरा सईद ने भी कहा है कि आई थिंक शी कंसिडर्स हिम अ लीडर, एज यू वेरी काइंडली हैव सेड यू कंसिडर हिम अ लीडर. आई थिंक आपने एक बहुत खूबसूरत बात की है जो कि इकरा की बात को कंप्लीट करती है, और वो ये है कि ही वाज अ सेल्फलेस मैन. अब इससे बड़ी खूबसूरत बात निकलती है. वेल, एक्चुअली सेल्फलेसनेस का ताल्लुक जो है वो दुनियादारी से नहीं है. सेल्फलेसनेस का ताल्लुक कुर्बानी से है. आई थिंक मोहम्मद अली जिन्ना इज अ ग्रेट एग्जाम्पल. अगर आप उसको नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग देखें, अगर उसको आप रत्ती का खामंद और दीना का बाप ना भी देखें और फातिमा का भाई ना भी देखें, तो द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट हिम आई थिंक इज दैट ही वाज, एज ताहिर साहब हैज सेड, he was an absolutely selfless man. I think that's the beauty of him. और इकरा ने कहा था he is a leader. तो मेरा ख्याल है अगर मैं क़यादत का पहला ही असूल मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी से निकालूं, तो पहला असूल जो है, और जो कि बड़ा सिंपल है, और आज 25/2021 की शाम को नजर आ रहा है, और आज विदाउट मेकिंग अ पॉलिटिकल आर्गुमेंट, क्योंकि मैं तो जी पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं आप लोगों की तरह, मेरी कोई सियासी एफिलिएशन नहीं है. तो आप इसमें मुलाहिजा फरमाइए कि आपको ये बड़ा ही खूबसूरत बात लगेगी कि अच्छा, इस सारे मामले में जो इस वक्त चल रहा है, या जो चलता रहा है 70 साल से, उसमें एक आदमी है जिसने बीज बोया था, उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, और वो सेल्फलेस था. वंडरफुल, एक्सीलेंट. कैन आई हैव मोर कमेंट्स प्लीज? कैन आई हैव मोर कमेंट्स? एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू से समथिंग? ये तालियां इसलिए कि आप जागते रहें. ये तालियां इसलिए कि आप जागते रहें. Anybody would like to add something, say something, please say it. It's a free webinar. अगर आप कुछ और लोगों को ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से बात कर लें, हम लिंक भेज देंगे उनको भी, ताकि हम आज मोहम्मद अली जिन्ना को वो ट्रिब्यूट दें अपनी तरफ से जो कि किसी ने ना दिया उनको. कोई और कुछ कहना चाहता है? कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं ट्रेनर हूं. मैं चाहता हूं कि लोग अपने तजुर्बात ला के रखें, अपने कमेंट्स ला के रखें. बहुत से लोग हैं माजरत के साथ जो कि जिन्ना साहब को पसंद नहीं करते. अगर कोई ऐसा कमेंट हो जो कि आपने देना हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखिए हमें मुकालमा करना सीखना है. मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़ा मुकालमा दान था, लॉयर था ना. मुकालमा दान था. मुकालमा कर करके कभी गांधी से, कभी नेहरू से, कभी पटेल से, कभी माउंट बैटन से पाकिस्तान दे दिया उसने आपको. कोई और कुछ कहना चाहेगा या मैं आगे चलूं? छोटी सी बात करनी है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, 5 बजे से पहले हमने वर्कशॉप को खत्म कर देना है, लेकिन हमने जिन्ना को बिल्कुल आज समझ लेना है एज ए मॉर्टल, एज द ग्रेट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह. कोई और बात किसी ने करनी है? कोई कुछ कमेंट करना चाहता है? यू आर फ्री टू से व्हाटएवर यू वांट टू से. चलें, अब मैं आपको एक बड़ा, अब मैं थोड़ी सी तमहीद बांध देता हूं. देखिए, पावर पॉइंट की स्लाइड्स चलाना कि वो ये थे और वो थे, ये बड़ा आसान काम है. उसके लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है. अगर आप तशरीफ लाए, आपने एस्पायर की इस एफर्ट को अप्रिशिएट किया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आमना भी, असदुल्ला भी, ताहिर साहब भी, और भी जो लोग हैं, ताहिर साहब की बेटियां जो हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना को आप जरा फ्रेम में रखें. तो अब फ्रेम में रखने के लिए, समझने के लिए कि इस आदमी ने हमारे लिए क्या किया, ये था क्या, मैं आपको एक छोटा सा अंग्रेजी का क्लिप दिखाता हूं जो कि उनके नवासे यानी कि दीना जिन्ना के बेटे नुस्ली वाडिया का है. आप देखिए मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उन्होंने क्या कहा है, और जब आप वो देख लें तो फिर मुझसे गुफ्तगू करें. आपका क्या ख्याल है नुस्ली वाडिया ने अपने नाना के बारे में क्या कहा है? So I present to you the clip, the interview from Mr. Nusli Wadia. Go ahead please, Aspire clip play करें. Clip play करें Aspire. थोड़ी सी, हाँ जी. Nusli Wadia is the grandson of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the son of his only daughter, Dina Wadia. He is one of the richest men in India. Per Wikipedia,
holding a net worth of 7 billion US dollars. Interesting to see his love and admiration for his grandfather in the following video. But you're probably the only businessman I know who the government has tried to deport, whose business rivals have tried to kill him, who's had virtually the entire government of India against him, who's fought back and taken on the government of India. Nothing in your background, born into this nice, genteel Parsi family, suggests that you were capable of doing it. Was it difficult? Well, to start with, you only talked to one half of my family. Yeah, I was going to talk about the other half in the second part. So when you say the That's the genteel Jinnah half, part, I don't know whether it is only the genteel half that is in my genes. But it wasn't the Wadia part, surely. Probably not. Probably not. In the sense that to stand up, I think came substantially from other genes, which are quite controversial at the moment. But anyway, I mean, but that was one of the issues was standing up. That's what happened in historically. You agree with it or disagree with it, and so I suppose some genetic So you think transfer that? took place. So do you recognize the Jinnah genes in you? You think? 100%. Yeah. In what way? What do you In the think you sense inherit? that What do you think you inherited from I them? think one inherits the genes of one's family, both sides of the family. I would say, I mean, from having known your father a little bit, that what you inherited from him was his essential honesty, his integrity, his belief in loyalty, in decency, and his charitable disposition, the sense that you had to do things for the community, that you had a greater responsibility than just making money. That bit is clear. The other half, what do you inherit from the other side? No, also integrity. I said integrity. No, the other side is integrity. Jinnah's integrity? Really? Explain that. I think he's a man. Because he's a controversial figure, so tell me what you think. Controversy is actually, integrity is a cause of controversy very often because a man sticks to his beliefs. And Jinnah was, I think, even his worst enemy will say he was the man of the highest integrity. Yes. Intellectual, financial, of course. But he was no issue. I mean, he made his own money. He didn't have any opportunity to be financially, lack of integrity didn't exist for him because he was a self-made man, and apart from that, he earned every cent that he had. So there was no integrity issue there. But intellectual integrity, nobody ever denied. He didn't say one thing and do another. He did what he said he was going to do. He was also a fighter. Is that where you got it from? Partly, maybe. Yeah, I mean, I think so. Yeah. Because my father was a much softer, gentler person. Jinnah was a tough guy. He was a fighter. He was a guy who never let go. Yeah, Once he stuck to what he believed. जबरदस्त. Can we go back to the slides now, Aspire, ताकि हम बात कर सकें? जी प्लीज कंटिन्यू. आप बताएं, आपने जिन्ना साहब के नवासे मिस्टर नुस्ली वाडिया, who actually runs the Wadia empire in India from Mumbai, आपने उनकी बात सुनी है. So anybody would like to comment? ठीक है ना? ये तो स्लाइड है, इसको आप बेशक ना भी देखें. Slides are not important. वापस जाएंगी पहली स्लाइड पे. मैंने आपको नहीं कहा कि क्रेडिट्स पे चले जाएं. वापस जाएं. वापस यहाँ पे रुके. जी आप बताइए. Anybody wants to say something? Please say it now. जी सर, दो पॉइंट्स थे. एक तो जैसे आपने दो, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, मुझे आपकी सब आवाज आ रही, क्लियरली आ रही. जी आपने जैसे एक पॉइंट कहा कि आप इस ट्रेनिंग के अंदर भी, इस वर्कशॉप में भी चाहते हैं कि मकालमा हो, तो काइंडली जरूर शेयर कीजिएगा कि आज जैसे हमारे माशरे में अगर मकालमा नहीं है तो उसकी क्या वजह है और हम इसको दोबारा कैसे जारी करें. जैसे आपने शुरू में बताया था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत अच्छे डिबेट भी करते थे. वो लॉयर तो थे ही, लेकिन उन्होंने हर एक से लॉजिक के जरिए से और उनकी बात तहम्मुल सुनकर की और पेशेंस से बात सुनते थे और फिर उसका जवाब भी लॉजिकल देते थे. तो ये काइंडली हमारी जनरेशन में कैसे आएगा और अपनी यंगर जनरेशन को कैसे सिखाएंगे मकालमा करना और बातचीत करना. एक तो ये बात थी. दूसरा, जैसे आपने कहा, तो मैंने यही इनपुट जो थी इस वीडियो में, थैंक यू फॉर शेयरिंग, वो ये कह रहे थे कि वो उनकी इंटेग्रिटी जो है ना, एक तो स्टैंड लेना और इंटेग्रिटी बहुत, उन्होंने कहा कि वो उनकी जिंदगी के अंदर थी, जो एक मुश्किल काम है. जो वो कहते थे वो सिर्फ कहते नहीं थे, वो जो है वो उस पर अमल भी करते थे. अपनी जो जाती जिंदगी में थी, जिस वक्त लोग उनके सामने नहीं होते थे, उसमें भी जो बातें कहते थे वो करते थे. तो ये दो पॉइंट मेरे थे. तो थैंक यू सर. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ताहिर साहब. जो अब मैं मैनेजमेंट का उस्ताद भी रहा, वो आपके मकालमे वाले सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ, बट मैं मैनेजमेंट का उस्ताद रहा. माँ बाप की दुआ रही कि मैंने जिंदगी अपनी रीजनेबली अच्छी गुजारी, अल्लाह करे मेरा आखिर भी अच्छा हो. लेकिन बहुत खूबसूरत बात की. एक्चुअली मैनेजमेंट में कहते हैं बड़ा कायद कौन है, वो जो कहता है वही करता है. वो तो किसी ने कहा वी सेड
and we did. अल्लाह करे बेटियां मेरी बात सुन रही हूँ. We said, हमने कहा और हमने किया. हमने कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार नहीं किया जब हमने कह दिया. So wonderful point, sir. और नुस्ली वाडिया यही कह रहे हैं कि एक्चुअली one of the great things about him, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल भुला चुका है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना मुझे कोई खान साहब से मुखासमत, ना मुझे कोई मियाँ साहब से मोहब्बत, ना मुझे कोई जरदारी साहब से मोहब्बत, ना मुझे फजल रहमान साहब से कोई मोहब्बत, मुझे सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत है. और आखिर में मैं इसकी वजह भी आपको बयान कर दूंगा. बट ये ताहिर भाई ने कहा है, एंड आई कुड जस्ट सी जोन हैदर जॉइनिंग. वेलकम जोन. मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली वाडिया साहब ने जो बिल्कुल जिसे कहते हैं मिसाइल मारा है हमारी तरफ, वो ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट आदमी थे. जैसे ताहिर साहब ने फरमाया, जो वो कहते थे वो करते थे. और जो वो करते थे उन्होंने पहले कहा होता था. इंडिया हमारा नेबर है. छोटी छोटी कहानियां भी साथ बयान कर देते हैं, स्लाइड्स ना भी देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इंडिया हमारा नेबर है. जिन्ना ने कहा हम इकट्ठे नहीं रह सकते. 1971 में हमारी गलतियों की वजह से बांग्लादेश बन गया, लेकिन जो उन्होंने कहा, अब जनाब नरेंद्र मोदी के बावजूद आने के बावजूद भी वो उस वक्त की बात साबित हो गई है कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते. मुसलमान आपस में झगड़ सकते हैं और बांग्लादेश मुसलमान मुल्क है और पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, ये इशू नहीं है. लेकिन अब मुसलमान इंडिया में भी इकट्ठे उनके साथ नहीं रह सकते. जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया. बाकी ताहिर भाई रह गई मुकालमे की बात. अगर आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें तो उस पे मैं छोटे छोटे 2 मिनट के वीडियो जो है वो डालता रहता हूं, और वो मेरे बच्चे आपको बता भी देंगे. अपनी बच्चियों को, बेटियों को, मेरी भी वो बेटियां हैं, आप उनको दिखाना चाहें. उसमें मैंने पिछली दफा कुछ डाला है कि हम आर्ग्यू क्यों नहीं कर पा रहे, हम मुकालमा क्यों नहीं सीख रहे. आपने सही फरमाया, उसे पूरा मैंने एक मॉडल दिया है, आप जब बच्चों को दिखाएगा, लेकिन उसकी जो जिस्ट है ना ताहिर साहब, वो मैंने कुरान से ढूंढी. कुरान कहता है आप एंगेज करें. कुरान कहता है एंगेज करने का तरीका है अदब. पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में. आप एंगेज करें, अपनी बात प्रेजेंट करें, आपसे बड़ा हो उससे भी, अपना छोटा हो उससे भी. आप अपनी ओपिनियन दें, लेकिन अपनी ओपिनियन ठोसे मत. पहला तो प्रिंसिपल ये है. अपनी ओपिनियन दें, गिव योर ओपिनियन, डोंट थ्रस्ट द ओपिनियन ऑन द अदर जेंटलमैन और लेडी. नंबर 1. और फिर वो कहता है, कुरान कहता है वहजरू हजरुन जमीला. अगर अगला बंदा आपकी बात उसने सुन ली, आपने अपनी आर्गुमेंट जोरावर तरीके से पेश कर दी, और अगर उसके बाद भी वो कहता है सॉरी चौधरी साहब, आई एम नॉट रेडी टू एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग अबाउट मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, तो फिर आप कुरान के मुताबिक अपने आप को डिसएंगेज कर ले. डिसएंगेज का तरीका भी बताया कुरान ने, वहजरू हजरुन जमीला. आप इस तरह से अपने दुश्मन या दोस्त से डिसएंगेज हो कि आपके ताल्लुकात अच्छे रहे, ताकि बाद में अगर आपको उनसे मिलना पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो. तो मुकालमे पे छोटी सी बात, बट मेहरबानी ताहिर भाई आपने मुझसे पूछा. बट एक्चुअली नुस्ली वाडिया पारसी हैं, वो तो आपको पूछते हैं. मोहम्मद अली जिन्ना तो एक खुदा को पूछता था. आखिर में उनकी बात करनी है मैंने कि वो मेरे वालिद मोहतरम ने भी डॉक्टर सफदर महमूद के हवाले से, बल्कि डॉक्टर सफदर महमूद ने मेरे वालिद मोहतरम के हवाले से एक आर्टिकल लिखा जिसमें मशहूर वाकया, अब तो हर एक उसकी बयान करता है, मैंने आखिर में वो आपको दिखाना है. बट द फैक्ट इज, आई थिंक इट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. Good starting point given by Mr. Nusli Wadia. You must, जो मेरे चारों बच्चे, मेरे 4 बच्चे हैं, आपके जो जो लोग यहाँ पे हैं, जोन हैदर तो मेरे ख्याल है वही है जो मेरे शागिर्द हैं भाई. जो आप कहते हैं वही आप कीजिए. दरमियान में अपने आप को मत बदलिए, और जब आप कहने लगे तो उससे पहले सोचिए, तोलिए, फिर बोलिए, ताकि बाद में आपको शर्मिंदगी ना हो. ठीक है ना. सो पहला प्रिंसिपल तो जिन्ना की सक्सेस का ये है, और जिंदगी की सक्सेस का ये. क्योंकि मेरा पॉइंट ये कि जिन्ना कायदे आजम बनने से पहले एक आम आदमी थे, मेहनत मजदूरी करते थे. उन्होंने लॉ किया, प्रैक्टिस किया, अभी उसकी कहानी आपके सामने आ जाएगी. सो पहला प्रिंसिपल तो तय हो गया आज की गुफ्तगू के लिए. आप जो कहते हैं वही कीजिए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं 2-3 स्लाइड्स आपके सामने पेश करना चाहता हूं. कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड एस्पायर? अगली स्लाइड पे लाएं ना जी जनाब.
तो ये जो छोटी सी बात मैंने अगले घंटे में आपके साथ करनी है, ये इसके माखिज दो हैं. इफ आई कुड यूज सम थोड़ी सी मुश्किल उर्दू अगर मैं इसके माखिज हैं. एक किताब जो कि स्टैनली वॉलपर्ट ने लिखी है जिसका नाम है जिना ऑफ पाकिस्तान. आई वुड एडवाइज ऑल पाकिस्तानी पेरेंट्स to buy this book. It is a cheap book, and to ask your children and request them, look, read the book. And if your children are interested in literature, then please buy them the second book, Mr. and Mrs. Jinnah, जो कि रत्ती और मोहम्मद अली जिन्ना के ताल्लुक पे लिखी है शीला रेड्डी ने. खूबसूरत किताब है. ये दोनों किताबें बड़े भी पढ़ें और बच्चे पढ़ें. और जो कुछ मैं आपसे कहूंगा इसमें बहुत सा एलिमेंट मेरा अपना है. 30 साल से मैं इस मुल्क की खिदमत कर रहा हूं जी. 30 साल से मैं इस मुल्क की खिदमत कर रहा हूं. 14 साल मैं सिविल सर्विस में रहा. उसके अगले 16 साल मैंने एकेडमिया में गुजारे. पाकिस्तान के बड़े बिजनेस स्कूल्स में मैं HR पढ़ाता रहा. और अब पिछले 6 साल से मैं ये काम कर रहा हूं जो कि आपके सामने, विच इज एक्चुअली ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जिन्ना है क्या? अब बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको इस बात को समझना. जिन्ना है क्या? जिन्ना एक बेसिकली लॉयर था, और मैं इसको कतन बुरा नहीं समझता अगर मैं आपको कहूं कि जिन्ना एक सियासतदान था. और सियासतदान जो होता है उसको कभी कभी अपने आप को ढालना पड़ता है. मैं ना तो कोई ऐसा लफ्ज यूज करूंगा जो कि आजकल की पॉलिटिकल डिक्शनरी में यूज हो रहा है, जैसे यू टर्न वगैरह वगैरह वगैरह. मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं. मेरा सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक है, क्योंकि मैंने इस मुल्क में अपने 4 बच्चों को पढ़ाया लिखाया और अब मैं उनको खैराबाद कहने के चक्करों में हूं ताकि वो अपने अपने काम करें. जिन्ना पॉलिटिशियन था, लेकिन जिन्ना पॉलिटिशियन से आगे था. वो एक स्टेट्समैन था. किसी ने कहा, चौधरी साहब या किसी और से पूछा कि यार पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन में फर्क क्या है? उन्होंने कहा सियासतदान सोचता है अगले इलेक्शन के बारे में और स्टेट्समैन सोचता है अगली जनरेशन के बारे में. याद रखिएगा, सियासतदान सोचता है अगले इलेक्शन के बारे में, स्टेट्समैन सोचता है अगली जनरेशन के बारे में. पाकिस्तान के लीडर थे, फैमिली मैन थे. रत्ती जिन्ना से जो उनका रोमांस है, मैं इसलिए आपको कहता हूं हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं. हम में से कोई वलीउल्लाह नहीं है. और अगर आप वलीउल्लाह बनना चाहते हैं तो फिर आप उस रास्ते पे चलें जिस पे आप ठोकरें खाएंगे, आप गिरेंगे, आपको जख्म लगेंगे. बकौल मौलाना रूम के आपको जख्म लगेंगे, आपके जिस्म पे स्कार्स होंगे, स्कार्स. और वो स्कार्स जो है ना, वो आपके अंदर रोशनी लेके जाएंगे. मोहम्मद अली जिन्ना की कहानी वो है. अगर मैं आपको आज वो आखिरी लेटर पढ़ाऊंगा, खुद अपनी आवाज में पढ़ूंगा, जो कि मोहतरमा रत्ती जिन्ना ने मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा बिफोर शी डाइड. आप उसे महसूस करेंगे किस किस्म के स्कार मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से रत्ती जिन्ना को लगे और रत्ती जिन्ना की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना को लगे. सो इन बातों को आप मेरे साथ देखते जाइए. अगली स्लाइड पे चलिए, फिर मैं आपसे कुछ एक सवाल फेंकूंगा अगली स्लाइड पे जाने के बाद. चले आगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो जिन्ना का प्रॉब्लम क्या है? है ना भाई, जिन्ना का मसला क्या है? अंग्रेजी का लफ्ज है पैराडॉक्स. आप वो तमाम लोग जो कि यहाँ पे हैं, तो भाई जिन्ना का मसला क्या है? जिन्ना का एक मसला है, आप बुरा ना मनाइएगा. अगर आपको मेरी तस्वीर आ रही है तो मैंने हाथ आपके सामने बांध दी. जिन्ना का मसला ये है, जिन्ना का मसला जिन्ना नहीं है भाई. जिन्ना का मसला जिन्ना नहीं है. जिन्ना ने तो जैसे ताहिर साहब ने कहा अपना तन मन धन बीवी बेटी सब कुछ अपनी बहन पाकिस्तान पे वार दिए. ओ भाई, जिन्ना का कोई मसला नहीं है. यहां पे बाप का मसला नहीं है. लेडीज एंड जेंटलमैन, द फादर इज सुपीरियर, ब्रिलियंट, एक्सलेंट, सॉफ्ट, कल्चर्ड, एलिगेंट. द प्रॉब्लम इज विद द चिल्ड्रन, विच इज मी. मैं अपनी बात करता हूं. चौधरी फजल मुखी, 57 साल की उम्र में मैंने जिन्ना के पाकिस्तान को क्या दिया भाई? क्या मैंने वो बातें की जो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था? चाहे वो उसने 11 अगस्त को कही, चाहे उसने 15 अगस्त को असेंबली में कही, चाहे कहीं भी कही, चाहे खालिद दीना हॉल के बाहर कही. ना 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 ना, मैंने तो आई एम द बिट्रेयर ऑफ जिन्ना. मैं अपने पे ले रहा हूं. आई एम द बिट्रेयर ऑफ जिन्ना. मैंने मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को बिट्रे किया.
क्योंकि मैंने इस मुल्क में वो नहीं किया जो कि मुझे करना चाहिए था, क्योंकि मैं डर गया। मैंने देखा मेरे बच्चों का नुकसान ना हो जाए, मैंने देखा मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मैंने देखा मेरा तो मकान ही 7 मरले का है, मैं कैसे बोलूं? तो सवाल ये पैदा होता है कि बाप ने तो नहीं देखा कि मेरी बेटी पारसी हो जाएगी नहीं ना, अब वो वाडिया से शादी कर लेगी। बाप ने तो नहीं देखा कि मेरे वो लोग जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे काफले में थे, वही मुझे मारेंगे पाकिस्तान बनने के बाद। बाप ने तो नहीं देखा। तो फिर अगर बाप ने नहीं देखा तो बेटे ने देखा। इसका मतलब है अगर बेटा जो है वो बाप पे नहीं गया, भाई बाप की गलती नहीं है, बेटे की गलती है। ठीक है ना? सो जिना का पैराडॉक्स ये है, जितना बड़ा वो लीडर है माजत के साथ, उतना छोटा चौधरी फजले मुकीम। अभी मैंने स्टैनली वॉलपर्ट से, आप देखें, फ्यू इंडिविजुअल्स, आपसे छोड़ दें बाकी, few individuals significantly alter the course of history. Fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Jinnah did all three. भाई जिन्ना का कोई कसूर नहीं, बच्चों का कसूर। अब सवाल ये पैदा होता है, हुआ क्या? देखे ना, कुछ तो हुआ होगा। अगर जिन्ना का कसूर नहीं है और उसके एक बच्चे चौधरी फजले, चले आप, ताकि आपका नाम ना है ना, उसके एक बच्चे चौधरी फजले मुकीम का कसूर है जो कि 57 साल का है इस वक्त, तो वेयर इज द प्रॉब्लम? चौधरी फजले मुकीम ने जिन्ना को कहां नहीं समझा? आगे देखते जाइए आप, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, फिर उसमें थोड़ी सी हम ब्रेक ले लेंगे। जनाब चलिए जनाब, अगली स्लाइड जनाब। ये तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जिन्ना पूंजा जो वालिद थे, उन्होंने जिन्ना की वालदा के कहने पे इनको 11, अब ये देखें आप, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन। भाई जो लीडर होता है ना, वो हुर्रियत पसंद होता है। अब मैं आपके बच्चों को ये नहीं कह रहा कि क्लासों से भागना शुरू कर दें लेकिन आप जिन्ना को देखें, बीच में 11 साल की उम्र में उनके वालिद ने, वालदा ने एक्चुअली, फूफी ने, वालदा ने, मुझे अब नाम नहीं पता किसका, पर किसी ने 11 साल की उम्र में उनको कहा यार इसको कराची से मुंबई भेज दो, वहां पे पढ़ाई बेहतर है। वो शरीफ आदमी, उसको वापस लाना पड़ा क्योंकि जिन्ना ने क्लासें अटेंड करनी छोड़ दी थी आपको पता था जिन्ना के बारे में? ये है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन्ना इज लाइक एनीबडी, अ ह्यूमन बीइंग, एक शरारती बच्चा। उसने क्लासें छोड़ दी, बाप ने कहा वापस आ जाओ कराची, काम करो यहाँ पे आके, ठीक है जी। सो आपको समझने की ये जरूरत है, मुझे चौधरी फजले मुकीम को, मैं भी तो उनकी औलाद हूँ, इंटेलेक्चुअल औलाद। मैं मोहम्मद अली जिन्ना की हूँ, अपने बाप की नहीं हूँ। मैं अपने बाप की औलाद हूँ, मेरा बाप मेरा मुर्शिद है। मैं मोहम्मद अली जिन्ना की इंटेलेक्चुअल औलाद हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ओ भाई, लोग नॉर्मल होते हैं फिर जब वो मेहनत करते हैं, उनको समझ आती है जिंदगी कहाँ जाती है, तो फिर वो अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। सो जिन्ना के निशंस में से अगर मुझे कोई बात अच्छी लगी तो वो तो एक, वो क्लासें बंक करते थे, ठीक है जी चले आगे चले। अब सवाल पैदा होता है जिन्ना ने किया क्या है ना। मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम इसलिए नहीं बन गया कि वो पैदाइशी कायदे आजम था। ओ भाइयों बहनों बेटों बेटियों, मेरी वो जो बेटियां ताहिर साहब की सुन रही, बेटों, पहले उसने अपना एक करियर बनाया, ठीक है ना, पहले उसने अपना एक करियर बनाया, फिर उसने उस करियर में एक्सेल किया, फिर उसको लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, ठीक है, और फिर जब उसको लोगों ने नोटिस करना शुरू किया तो वो सियासत में आ गया, और फिर जब वो सियासत में आ गया तो उसने बकौल नुसरी वाडिया के वो जो उसने कहा वो उसने किया, चुनांचे वो कायदे आजम बन गया। अब अगली स्लाइड्स पे मैं आपको दावत, आप कमेंट करें, आपको कोई चीज अगली किसी स्लाइड पे खूबसूरत लगती है तो कमेंट कर लें, वरना मैं आपको आगे ले जाऊंगा। चलेंगे अगली स्लाइड। हम पहले देख रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको मैं प्यार से मैज कहता हूं, इसका मतलब नहीं कि मैं उनकी इज्जत नहीं करता, मेरे बाप की जगह है। मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन में क्या किया? आप देखें, 5 बुलेट्स हैं। आप किसी पे कमेंट करना चाहते हैं, कोई भी तो कर ले। जिन्ना की कहानी है ना जी चौधरी फजले मुकीम की जबानी आज, ठीक है आप कमेंट करना चाहते हैं, मैं इसमें से एक चीज पिक करना चाहता हूं, मैं एक ही पिक करूंगा, लेकिन आप देख लें, अगर आपने कमेंट करना है, किसी ने भी लिख के कर लें यार, कोई टेंशन नहीं है। यू कैन राइट, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू स्पीक, यू कैन राइट। इफ यू थिंक देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग हियर, यू कैन राइट, वेयर इज द प्रॉब्लम, ठीक है ना, और यू कैन कमेंट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर ले, ताहिर साहब की तरह, जैसे ताहिर साहब कमेंट कर रहे हैं। अगर आप इफ यू वांट टू राइट समथिंग, राइट यार, कोई मसला नहीं, टेंशन कोई नहीं लेनी। हमने अच्छी अच्छी बातें करनी है, फिर इसको कहीं पे ले जाना है। इफ एनीबडी वांट्स टू से समथिंग, आप कह सकते हैं। अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ चौथे बुलेट के बारे में बात करनी है। जी सर, जी सर, जी इसमें 2-3 पॉइंट्स। एक तो वही जो आपने बात की कि वो अपनी फील्ड में एक्सेलेंस की तरफ गए, तो वही हमें, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि जब आज हम उनकी बात कर रहे हैं, और तो ये हमें भी जो है, हमें अपनी फील्ड में एक्सेलेंस पे जाना है और उसके लिए हमें कोशिश करनी है। तो एक तो ये बात थी। दूसरा, उन्होंने यहाँ पे लिखा है चेंज, उन्होंने चेंज भी किया मेरे ख्याल से अपने इसको, वो जो उनको यानी लॉ की तरफ गए और फिर उन्होंने उसमें एक्सेलेंस की तरफ चले गए। और लास्ट ये मेंटोर का वर्ड भी आया है, तो जितने आज पार्टिसिपेंट हैं उन सबके आज के जो मेंटोर हैं वो आप हैं। सो थैंक यू सर। मैं तो छोटा आदमी। ताहिर साहब ने बात बड़ी खूब, मैं 2 बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ताहिर भाई की बात पे बिल्ड करते हैं, आप भी प्लीज बात करें। अगर आप बात नहीं करेंगे ना तो फिर गप नहीं चलेगी, वो गप नहीं चलेगी। टाइम तो पूरा हो जाएगा, आपके लिए भी फ्री है, मैं अपना जोर लगा के चला जाऊंगा, मजा कोई नहीं आएगा, ठीक है। मेरा ख्याल है 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्ना के शुरू की जिंदगी में। ओ भाई 4 साल का या 3 साल का कोर्स 2 साल में कर लिया। ब्राइट आदमी ऐसे ही होगा ना। ब्राइट आदमी ऐसे ही होगा कि 4 साल का या 3 साल का कोर्स उन्होंने 2 साल में कर लिया। ऊपर वाली बात जो ताहिर भाई ने की है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब्बा ने भेजा, क्योंकि जिना पूंजा का तो कारोबार था, अब्बा ने भेजा था जाके कारोबार सीखो, पढ़ो। वो शरीफ आदमी ने जाके अब्बा के कहने के ऐन उल्टा करके जाके लॉ कर लिए, है ना। आपको एक क्लियर बात मोहम्मद अली जिना में नजर आएगी, और वो क्या है, अब आगे जाके बात बड़ी खतरनाक हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं जिना साहब के बारे में, जैसे आजकल भी लोग कहते हैं, और फिर मैं आपको उसकी काउंटर आर्गुमेंट दे दूंगा। जिना, मोहम्मद अली जिना, अगर इन 2 स्लाइड्स में बात खत्म करके आपको डॉक्टर एलन कैसलर का क्लिप दिखा दूं, वर्कशॉप खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात समझ आ जाएगी कि जिना, लाइक एनी ग्रेट माइंड, लाइक एनी इंडिविजुअल हु इज एम्बिशियस, वाज अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। आप इसको बागी भी कह सकते हैं। एक बात तो ये है, ठीक है ना, अगर हम जिना की प्रोफाइलिंग कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि अगर मैंने आपको कहा था अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। अल्लाह करे मेरी बेटियां सुन रही हो ताहिर साहब के घर में, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। आप जब भी जिंदगी के सफर पे जाते हैं आपको किसी बड़े के पीछे जाना पड़ता है। अरे भैया, दादा भाई नारोजी जिनका नाम लिखा है, he was a Congressite, but Jinnah thought and believed that Dadabhai Naroji was a good man to have as a mentor. जब तक आप किसी के आगे आगे हाथ नहीं जोड़ते, उर्दू में कहते हैं जानुए तलम्मुस नहीं इख्तियार करते, किसी ऐसे आदमी या औरत के सामने जिसको आपसे जिंदगी के बारे में ज्यादा पता है, तो भैया आप आगे कैसे जाएंगे, ठीक है। सो 2 बातें बड़ी अब क्लियर हो गई हैं। दूसरी स्लाइड पे, जिन्ना वाज एन इंडिपेंडेंट माइंडेड बागी पर्सन। Number 2, he changed his career because he liked law more than he liked business, which was his father's career. Number 3, he was always looking for senior people. वो कहाँ है, वो किस बंदे की मैं जाके किस बंदे की जाके मैं उसकी इज्जत करूं, उससे पूछूं मुझे भी कुछ सिखा दो, ठीक है। दादा भाई नारोजी उस कैटेगरी में आते हैं। अगली स्लाइड प्लीज। थैंक यू ताहिर साहब। अब मैं चाहूंगा, मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि आप इसमें आइए। इरम सईद भी मेरा ख्याल है यहाँ पे हैं, इकरा सईद भी यहाँ पे हैं, बाकी लोग भी हैं। यार अगर आप इस बंदे को समझना चाहते हैं तो फिर तो आपको आगे आना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए आप, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें जिन्ना साहब के बारे में, बड़े कम लोग जानते हैं। बड़े कम लोग जानते हैं, बड़े कम लोग जानते हैं। वो स्लाइड पे डिपिक्टेड है, कोई उठा सकता है, मुझे बता सकता है वो क्या है? एनीबडी? वो कौन सी चीज है जो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में यहाँ पे आश्कार हो रही है? अब्बा ने पढ़ाने भेजा था बिजनेस, चले गए लॉ में, लॉ 3 साल का 2 साल में कर लिया। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हो रही है, आप देखें। कोई बोलना चाहेगा? अब मैं कमेंट शीट को भी देख रहा हूं,
और मैं आपको सुन भी रहा हूं, कोई इशू नहीं, अगर आप बोलेंगे नहीं तो मैं बात तो कर लूंगा। तालियां बजाता था कि आप जागते रहें। कोई मुझे बताना चाहेगा कि वो कौन सी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि स्लाइड पे मैंने लिखी है आपके लिए? इसमें एक पॉइंट सर, कई पॉइंट हो सकते हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जब उन्होंने अपने वालिद को उसमें देखा, फादर इन हाँ, इकोनॉमिक ट्रबल, तो जैसे आप बिल्कुल बार बार बात कर रहे हैं कि बाद अब्बा नसीब अल्लाह करे हम सब, पहला आप बार बार आमीन। कह रहे हैं कि वो मोहब्बत के करीनों में है, तो ये भी एक बिल्कुल पॉइंट है। और भी यकीनन इसमें और भी पॉइंट्स हैं कि उन्होंने और भी, सिर्फ एक उन्होंने देखा, सिर्फ लॉ को नहीं देखा, उन्होंने और भी तरफ गए, यानी थिएटर कंपनी को बिल्कुल ज्वाइन किया, अपने अपने अपना एक्सेलेंट एक्सपोजर पॉइंट, बढ़ाया। हाँ, जो मौका एक्सेलेंट मिला पॉइंट। उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। हाँ, जो मौका जी मिला बिल्कुल बिल्कुल रोल भी बिल्कुल, प्ले जी किया। बिल्कुल जी जी, जो सर। और जी जी, मैं जो मैं मौका मिला आपको वही किया। जी 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 बिल्कुल, और बाकियों को जिला देने के लिए मैं आपका रेफरेंस भी उनको दूंगा, और अगर आपकी बेटियां कोई बात करना चाहती हैं तो आप बच्चियों को माइक दें, उनको बात करने दें। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ताहिर भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। एक तो देखें आप ना, मैं आपको एक बता दूं, वो कहते हैं कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। ओ भाई, मुसलमान हो ना, माँ बाप ने मुसलमान पाला है ना। जॉन हैदर हो या इकरा सईद हो या आमना बेटी हो, भाई आपको मुसलमान पाला है ना माँ बाप ने, वो तो खुदारा मुसलमान रहो यार। तो फिर ये है ना, अगर बाप या माँ को जरूरत पड़ गई है तो वापस आ जाओ ना यार। तो कोई ये तो नहीं कह रहा कि काम ना करो। मोहम्मद अली जिन्ना ने बिजनेस पढ़ने गया था, उसके बाद उसने लॉ कर लिया, और दरमियान में उसने सोचा यार मैं एक्टिंग भी करके देख लूं जरा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सपेरिमेंट करो, जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करो। मोहम्मद अली जिन्ना आपको ये कह रहा है, कराची से, कराची में है ना आप, जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन अपने खानदान से लॉयल रहो, और जब माँ या बाप को, बहन या भाई को, बीवी या खावंद को जरूरत हो तो फौरन लौट आओ। फौरन लौट आओ, ठीक है ना। क्योंकि ड्यूटी, देखो, एक बहुत बड़ा जर्मन फलसफी है, मैं आप सबको कह रहा हूं, जितने भी हैं आप, माशाल्लाह आप 8-9 लोग हैं इस वक्त, और ये बहुत हैं, क्योंकि ये जो 8 लोग हैं, अगर ये एक बंदा 10 लोगों को बताएगा ना, तो चौधरी फजले मुकीम का मैसेज 80 लोगों के पास जाएगा। तो इससे बेहतर और क्या चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, इमैनुअल कांट एक जर्मन फिलोसफर है, उससे किसी ने ड्यूटी के बारे में पूछा, व्हाट इज ड्यूटी, एंड यू नो व्हाट ही सेड? He said, well, duty is a categorical imperative. मैं कोई रिलीजियस एग्जांपल नहीं आपके सामने पेश करना चाहता। तो इमैनुअल कांट ने कहा ड्यूटी इज अ कैटेगोरिकल इंपैरेटिव। इसका मतलब अंग्रेजी का ये बना, ड्यूटी हैज टू बी डन एंड इट हैज टू बी डन व्हाटएवर द कॉस्ट। You see, if you are going to weigh your duty against your cost, you are a dead man or woman. Well, you will never rise to be a कायद आज़म। ड्यूटी का मतलब है कि आपको उसकी कॉस्ट को नजरअंदाज करना पड़ेगा। सुनो मोहम्मद अली जिन्ना की बातें, आज आगे चलें जी, आगे चलें, आगे चलें, एस्पायर आगे चलें। अब देखिए, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जिंदगी में वो लोग, आप देख लें, आप मुझे बता सकते हैं, कोई बंदा कमेंट करना चाहे आप करें ना कमेंट, आप क्यों नहीं कमेंट करते? अगर आप मुझे सुन भी रहे हैं तो आप कमेंट करने में कौन आपको रोक रहा है? ताहिर भाई भी तो कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, वरना मैं तो आपका खादिम हूं, मैंने तो जिन्ना की आज मशहूरी करनी ही करनी है। आप पढ़ें, लुक एट द थर्ड स्लाइड, जो है ना, वो तो इसलिए बनाई जाती है ताकि आपके सामने रहे, हम आपको स्लाइड्स मेल भी कर देंगे, आप बेशक इस्तेमाल करें, जिसको भी देनी है। और उस जमाने की जो 1,500 रुपए की नौकरी होगी ना, वो आजकल की कम से कम 30-40 लाख की है। आपने जिन्ना का जवाब देखा है? I will soon be able to earn that much in a single day. This is Muhammad Ali Jinnah for you. सियासतदान, और ये बड़ा अच्छा लेसन है आज के पाकिस्तान के लिए, बड़ा ही अच्छा लेसन है। But if you want to be a politician and you then want to graduate from being a politician to a statesman, oh bhaiya, you have to have a career.
ओ जी माशाल्लाह हम तो जदीद पुरसी सादान है। ओए कोई नहीं होता जदीद पुरसी सादान। आप सीखते हैं, कोई भी काम करना होता है पहले आप उसको सीखते हैं। Muhammad Ali Jinnah was an excellent lawyer. He converted that goodwill of being an excellent lawyer into being what I call, मैं भी आपको उसको explain भी कर दूंगा, what I call a retail politician. And from that being a retail politician, जब आपको आखिरी स्लाइड में सुनाऊंगा आपको समझ आ जाएगी कि he then became a statesman and कायदे आजम, because वो retail politician और कायदे आजम के दरमियान वो जो है ना जिन्ना साहब ने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है भाई, वो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो बेसिकली एक बहुत बड़ी जिन्ना साहब के बारे में उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आपने अगर नुस्ली वाडिया को सुना है तो उसने कहा यार वो तो गरीब आदमी था मेरा नाना। उसने पैसे खुद बनाए, उसने मेहनत मजदूरी की। सो भाई मेहनत मजदूरी करने से मत डरिए, ठीक है ना जी। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखें कि उस जमाने के 40 लाख के बारे में उसने कहा कि भाई ये तो मैं एक दिन में बना लूंगा, व्हाई शुड आई गो एंड वर्क फॉर समबडी, ठीक है। आपको कमेंट करना चाहिए, मैं आपको कहता रहूंगा, ठीक है। आगे चलें जी, आगे चलें सर, आगे चलें। अच्छा इसमें सॉरी सर, पीछे में जो कमेंट था पिछली स्लाइड में, तो आपने मेंटोर्स के भी कहा है, और मेंटोर में भी यही है कि उन्होंने 2 तरह के मेंटोर रखे, यानी अगर पॉलिटिकल मेंटोर उन्होंने अलग किए और लीगल मेंटोर उस फील्ड के एक्सपर्ट से ही उन्होंने मशवरा लिया, ये नहीं किया कि जो जिस फील्ड का था वो लिया। और बाकी जैसे भी आपने कहा कि वो ब्रेव भी काफी थे, कॉन्फिडेंस भी थे, और यकीनी बात है वो अपनी फील्ड में जो कॉन्फिडेंस और ब्रेवरी आती है, बल्कि ये आप बताइए सर कि अपनी फील्ड में ब्रेवरी और कॉन्फिडेंस कैसे आता है, तो जैसे माशाल्लाह आपने अपनी फील्ड का भी जी ये जरा बता दीजिएगा। थैंक यू सर जी देखें 2 ही बातें हैं। अल्लामा इकबाल के शेर की सूरत में आपको बताता हूं। आपने फरमाया कस्बे कमाल कुन के अजीजे जहां शबी, कोई ऐसा काम कर कि दुनिया तुझे तेरे काम से पहचाने। अच्छा अब वो जो आपका सवाल, अब मैं आपको क्या जवाब दे सकता हूं, मैं तो खुद ही बड़ा कम छोटा किस्म का आदमी हूं, लेकिन थोड़ा सा मेरा जो एक्सपीरियंस है, देखें जी कस्बे कमाल के लिए एक तो शर्त मेहनत है, और दूसरी शर्त जो है ना ताहिर भाई एंड एवरीबॉडी हु इज हियर, ठीक है, वी स्टिल हैव 8 पीपल एंड आई एम हैप्पी दैट वी हैव दोस 8 पीपल। तो उसमें ये है कि एक्चुअली जो दूसरी बड़ी शर्त है वो ये है कि आप में ये एबिलिटी हो कि आप रिस्क लेने को तैयार, ठीक है ना। सो आप मोहम्मद अली जिन्ना का रिस्क पता क्या था, मैं आखिर में बताऊंगा आपको। मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 चीजों पे रिस्क लिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, जाके बताना यार कुछ लोगों को। आज के एक आदमी पागल मिला था, उसने तुम्हें जिन्ना के बारे में ये बताया। उसने 2 चीजों पे रिस्क लिया, कोई मर्द या औरत नहीं लेता। एक उसने अपनी शादी पे रिस्क लिया पाकिस्तान की खातिर, सोच लें, एक उसने अपनी शादी पे रिस्क लिया, और दूसरा रिस्क जिसके बारे में मैं आपको माउंटबेटन का घटिया तरीन बयान बताना चाहता हूं, और दूसरा रिस्क उसको खवातीनो हजरात उसने लिया अपनी सेहत पे। तो माउंटबेटन के सामने जब उसके एक्सरे पेश किए गए तो उसने कहा ओ माय गॉड, इफ आई हैड नोन दैट जिन्ना वाज डाइंग I would have delayed the partition of India by a couple of months. ठीक है ना जी। तो फिर आप खुद फैसला कर लें कि कौन लोग हैं जो कि मॉरल जिनकी मोरालिटी हाई होती है, और कौन लोग हैं जो कि सिर्फ ताकतवर होते हैं। सो रिस्क लेना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। अगली स्लाइड सर, चलिए अगली स्लाइड सर। हाँ अब चले। अब मैं आपको ना यहाँ पे, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज अ रिटेल पॉलिटिशियन। चले, अब ये मैंने पता कहां से उठाया, मैं आपको बता दूं। अमेरिका के जो करंट सदर हैं जो मैं अब माजूद से थोड़ा सा मजाक में करना चाहता हूं, जो कि हमें फोन नहीं कर रहे ठीक है, जिनको साल होने को आया है, जो अमेरिका के करंट सदर हैं, उनको जो बाइडेन के बारे में नॉर्मली कहते हैं यार उसकी सक्सेस जो है ना पिछले 50-60 साल की, वो इसलिए है बिकॉज ही इज अ वेरी गुड रिटेल पॉलिटिशियन। वो पाकिस्तान तो भरा पड़ा इनसे, अब वो कौन होंगे रिटेल पॉलिटिशियन? चले, anybody will tell me what is a retail politician? अपनी समात और अपने कान मेरे साथ रखें, क्योंकि मैंने बात पूरी करके जाना है, ठीक है ना जी। हम हाफ वे थ्रू हैं और मेरा काम भी तकरीबन हाफ वे थ्रू है। देखे ना, स्लाइड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, द गप इज इंपॉर्टेंट। अगर आप गप लगाएंगे तो बात बनेगी, वरना तो बात ही नहीं बनेगी। कैन समबडी टेल मी व्हाट इज अ रिटेल पॉलिटिशियन? एनीबडी? कोई लिखना चाहता है लिख ले, कोई वैसे सुनना चाहता है सुन ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
What is a retail politician? That is my question, ladies and gentlemen. हाँ बताएं बताएं बताएं. मैं तो बता ही दूंगा, जाहिर है मेरा तो काम है बताना. अच्छा कोई नहीं बोल रहा. गाने सुनाऊं आपको मैं? नहीं गाने नहीं सुनाने, क्योंकि आज मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बातें करें. जनाब आली हजूर वाला खवातीनो हजरात, अल्लाह आपको सलामत रखे. पहली तो दुआ दे, आपको दुआ दे दें, ठीक है. सो इसमें आमना मेरी बेटी भी शामिल है. बेटियां ही है ना जी, अब मैं उस उम्र के, आमना भी हैं, जोन हैदर भी हैं, मोहम्मद उमैर भी हैं, ताहिर भी हैं, यमान हुजैफा भी हैं, और भी और लोग हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं भाईजान, मेहरबान, कदरदान, अ रिटेल पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल साइंस में आप जब रिटेल पॉलिटिशियन की डेफिनेशन करते हैं, तो जैसे रिटेल स्टोर्स नहीं होते, आप क्या करते हैं? रिटेल स्टोर पे जाते हैं, आप जाते हैं बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में, वो रिटेल सुपरमार्केट्स ही होती है ना, वहां से लफ्ज निकला है. आप जाते हैं, कोई डबरोटी लेता है, कोई मक्खन लेता है, कोई कपड़े लेता है, कुछ नहीं. रिटेल पॉलिटिशियन वो होता है जो कि जब कोई मसला सामने आए तो वो डील करवाता है. अच्छा अब कोई बुरी बात नहीं, सद एहतराम, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है पाकिस्तान के सारे सियासतदान, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, बट पाकिस्तान का अगर आप एक अच्छा रिटेल पॉलिटिशियन देखना चाहते हैं इस वक्त के जमाने में, तो वो मौलाना फजलुर रहमान है. बहुत अच्छे रिटेल पॉलिटिशियन है. आप उन्हें कहें यार मौलाना साहब ये डील करवा दे, वो डील करवा दे, ठीक है. सो मोहम्मद अली जिन्ना भी एक हद तक रिटेल पॉलिटिशियन रहे हैं. चलें जी आप स्लाइड दिखाएं, अगली स्लाइड पे ले जाएंगी, स्लाइड पे ले जाओ ना आगे. हाँ यहाँ पे रोको. यू सी अ रिटेल पॉलिटिशियन वुड रिकॉग्नाइज, अब मैं स्टेट्समैन की बात नहीं कर रहा मैंने कहा था रिटेल पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियन वो होता है जो कि अगले इलेक्शन की सोचता है. सो मोहम्मद अली जिन्ना में ये एबिलिटी थी, and he might have taken it from his law degree and his practice, that he understood कि इंडिया को कहां जाना चाहिए. आप ये देखें, गौर करें है ना लोग कैसे इवॉल्व होते हैं. भाई जो चौधरी फजल मुकीम 30 साल में था, वो चौधरी फजल मुकीम 57 ईयर्स में तो नहीं है ना. तो मोहम्मद अली जिन्ना जो 1910 में था, मोहम्मद अली जिन्ना वो 1947 में तो नहीं था ना, 37 साल बाद, ठीक है ना, क्योंकि रियलिटी चेंज हो गई थी. रिटेल पॉलिटिशियन की खास बात ये होती है कि वो लोगों की खिदमत करना चाहता है, लेकिन वो उस कॉन्टेक्स्ट में आप जिसमें उसको डालते हैं ना, वो उसमें खिदमत करना चाहता है. अब सोने पे सुहागा क्या है मोहम्मद अली जिन्ना के केस में? मोहम्मद अली जिन्ना के केस में सोने पे सुहागा ये है कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हिज इंटेलेक्चुअल मोरालिटी. मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो बच्चे अगर कोई सुन रहे हैं, जोन हैदर का तो मुझे पता है, और मुझे इकरा सईद का भी पता है कि ये मेरे सब बच्चे हैं. रिटेल पॉलिटिशियन होने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन इस बात में, एक्सक्यूज मी, इस बात में बड़ा हर्ज है कि आप किस हद तक अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं. दैट इज गोइंग टू इम्पोर्टेंट. सो पहले जिन्ना साहब को ये समझ आई, 1910 का जो जिन्ना है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मैं आपको थोड़ी सी बात करूंगा. 1910 का मोहम्मद अली ये जिन्ना ये देख रहा है कि अंग्रेजों ने उस वक्त उसे कहते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको आप आज नेशनल असेंबली कहते हैं ना, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई है ताकि जो इंडियन है, हिंदू और मुस्लिम दोनों, वो उसमें आके बात कर सके इंडिया के बारे में. तो ही थॉट इट वाज इंपॉर्टेंट दैट ही शुड गेट इलेक्टेड टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो इंपॉर्टेंट बात है आपको समझने के लिए कि जिन्ना शुरू कहां से हुआ एक है जिन्ना बच्चा शरारती, एक है जिन्ना लॉयर जिसने पैसे बनाए, अब है एक जिन्ना रिटेल पॉलिटिशियन. अब उसने किया क्या, वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया इसलिए कि उसको पता था वहां बैठ के मैं अपने लोगों का ख्याल कर सकूंगा और उनके लिए कुछ काम कर सकूंगा. ठीक है जी, अगली स्लाइड चलें जी, अगली स्लाइड प्लीज, अगली स्लाइड, अगली स्लाइड से, ठीक है जी. अब ना पिछली यार, पिछली सॉरी. अच्छा अब देखिए आप इसकी स्मार्टनेस देखें. अब इसको आप स्मार्टनेस कह लें. बहुत से लोग जो कि मोहम्मद अली जिन्ना को पसंद नहीं करते, वो कहते हैं यार फर्क क्या हुआ, फर्क तो कोई नहीं है, XYZ को देख लो, मोहम्मद अली जिन्ना को देख लो. वो एम्बिशियस आदमी था, उसने अपना पॉलिटिकल करियर सामने रखा. वो तो बहुत से ऐसे शहजादे और शहजादियां भी हैं जो कहते हैं कि उसने तो पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि उसका नाम तारीख में आ जाए. चले, हम उनके आर्गुमेंट को चैलेंज नहीं करते. अभी मैंने आपको बताया मकालमा करना सीखी. जिन्ना ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके ये महसूस किया, माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि जो दो बड़ी कम्युनिटीज है ना, हिंदू और मुसलमान, उनको इकट्ठे चलना पड़ेगा, चुनाचे he joined Muslim League and he also remained a member of the Congress. इन दो चीजों की बुनियाद पे, इन दो चीजों की बुनियाद पे मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ओ हो, वो मोहम्मद अली जिन्ना जिसको नरेंद्र मोदी अब बुरी बुरी बातें कहते हैं और उस इंडिया में जहां पे मोहम्मद अली जिन्ना का नवासा कारोबार करता है, वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब आप देख ले नीचे, इंटरेस्टिंग बात नहीं है, जिन्ना का पॉलिटिकल मेंटोर, इस आदमी को जानता है कोई? मोतीलाल नेहरू कौन है? एनीबडी वुड लाइक टू से एनीथिंग अबाउट मोतीलाल नेहरू? कोई कहना चाहेगा मोतीलाल नेहरू के बारे में? कोई नहीं कहना चाहेगा। आप सुनना चाहते हैं, मेरा गला खराब करेंगे आप? कहेंगे नहीं। मोतीलाल नेहरू, मोहतरम जवाहरलाल नेहरू के वालिद बुजुर्गवार मोहतरमा इंदिरा गांधी, जिन्होंने बांग्लादेश बनवाने के बाद और हमें 2 लाख करने के बाद, क्योंकि हम खुद कमजोर थे, उसके बारे में भी आपको कहानी आखिर में सुना जाऊंगा मैं। मुझे याद करा दीजिए कि चौधरी साहब वो बांग्लादेश की कहानी सुना दें। ठीक है। वो मोतीलाल नेहरू जिसका बेटा था जवाहरलाल नेहरू, जिसकी 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 पोती थी इंदिरा गांधी, जिसने कहा 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान को तोड़ने के बाद, अब भारत की नारी, मेरी बात को याद रखिएगा, दुश्मन को कभी ना भूलें, अब भारत की नारी मगरबी पाकिस्तान के खेतों में नाच के दिखाएगी। नहीं नाच सकी ना। तो जिन्ना ने मोतीलाल नेहरू को अपना मेंटोर बनाया। आप देख लें, पॉलिटिक्स देखो, किसी ने पॉलिटिक्स को डिफाइन किया, मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं अपनी जिंदगी में। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। जिन्ना थॉट इन 1913, मैं उनकी कहानी भी आप सामने पेश कर रहा हूं। 1910 में, 1913 में जिन्ना का ख्याल था कि इकट्ठे रह लेंगे हम। So he joined the Muslim League also and he joined the Congress also। और एक बड़ा दोस्त उन्होंने बनाया, उसका नाम था मोतीलाल नेहरू, जिसकी पोती का मैंने आपको आज जुमला बताया, स्टेटमेंट बताई है। अपने दुश्मनों को याद रखें। A honorable enemy is an enemy who remembers कि उसका दुश्मन कहां खड़ा है और वो आपके बारे में क्या सोचता है। आप मेरी बातों को याद रखिएगा और किसी से फैक्ट चेक भी करवा लीजिएगा कि आज एक दीवाना चौधरी फजले मुकीम मिला था। आगे चलेंगे, आगे चलें सर, आगे चलें। हमने टाइम पे खत्म करना है सर, आगे चलें, आगे चलें भाईजान। हाँ जी, ठीक है। अब इस पे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें जो मेजर बात है, और ये जिन्ना के बारे में बहुत से लोग कहते हैं, आई लीव इट टू योर जजमेंट। मैं आपको कहूंगा वॉलपट की किताब पढ़ें। बहुत से लोग कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना का इन्फ्लेटेड ईगो था। अच्छा, सो बिस्मिल्लाह, जैसे मेरा कायदे आजम है, आपका भी कायदे आजम है। मेरे ख्याल में मोहम्मद अली जिन्ना में 2 चीजें थी, आप उसको ईगो कह लें, मैं आपको रोकूंगा नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना में एक विजन थी कि हमने कहां जाना है, और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना वाज वेरी वेरी कॉन्शियस। आप इसको ईगो कह सकते हैं, मैं आपको आपकी बात को काटूंगा नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना वाज वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए ना, जनाब रसूल ने फरमाया, अब मैं आपको थोड़ी सी बात, जनाब रसूल ने फरमाया अल फकरो फखरी। आज एक बहुत बड़े नबी का जन्मदिन भी है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में जनाब रसूल कहते थे मेरे भाई ईसा। तो जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल फकरो फखरी, मुझे अपने फकर पे फखर है, मुझे अपनी ह्यूमिलिटी पे फखर है। मेरे ख्याल में जिन्ना वाज अ वेरी हम्बल मैन। मैं आपको आखिर में अपनी एविडेंस देके जाऊंगा, फिर मैं आपसे डिसएंगेज हो जाऊंगा। जिन्ना वाज अ वेरी हम्बल मैन, बट जिन्ना हैड अ heightened sense of self respect। ठीक है। तो मेरा ख्याल है गांधी से ना, ये जो पहली ग्लिम्स मैंने डाली है, अगर आप तीसरा बुलेट पढ़ ले, गांधी से थोड़ा सा फड्डा हो गया उनका, थोड़ा सा फड्डा था, मैं इसको मानने को तैयार हूं। आगे चलें जी, आगे चलें सर, आगे चलें सर, आगे चलें, जबरदस्त। सो अब आप ऊपर कुछ नहीं पढ़ना,
जो सबसे बड़ी कामयाबी है जिन्ना साहब की, वो है लखनऊ पैक्ट। और लखनऊ पैक्ट था मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान वो वाहिद पैक्ट जिसमें कहा गया कि मुसलमानों को मुख्तलिफ सूबों में रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी जहां पे वो हैं, ठीक है, और उस रिप्रेजेंटेशन के बदले मुसलमान हिंदुओं के साथ चलने को तैयार हैं। सो मोहम्मद अली जिन्ना 1910 से लेके, अब अगर मैं आपको समराइज करूं क्योंकि मैंने टाइम पे खत्म करना है, ठीक है ना जी, 1910 से लेके और तकरीबन 1930 तक इस बात के शदीद हामी थे कि हमको इकट्ठे चलना चाहिए, ठीक है। सो लखनऊ पैक्ट, वो जो उनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का इशू है ना, वो उसमें आता है। अब दरमियान में मैंने एक जुमला डाल दिया है, ये वो टाइम है 1915-20 का, when he fell in love with रतन बाई रति जिन्ना। कहानी बड़ी सिंपल है। सर डिनशॉ पटीट रति बाई जिन्ना के वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना के कलीग थे, उनके क्लाइंट थे, एक्चुअली लीगल क्लाइंट थे। और रति बाई उनसे 24 साल छोटी थी और रति बाई उनको पसंद आ गई। ये तो दिल के मामले हैं, अब इसमें मुझसे कुछ पूछेगा नहीं कि दिल के मामले कैसे चलते हैं। लेकिन इसका ये मतलब है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके भी दिल होते हैं, उनको भी लोग पसंद आते हैं। आप जब किसी को रहमतुल्लाह अलैह की खूंटी पे लटकाते हैं ना पाकिस्तान में, तो आप ये खुदा ना खास्ता कहना चाहते हैं कि इसमें कोई खराबी नहीं। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, you can't be a superhero unless you are a normal human being। और मासूम बड़ी महारत के साथ हाथ बांध के, कैमरे में मेरे हाथ आ रहे हैं, मासूम मेरे ख्याल में तो सिर्फ नबी है। नबी इज द ओनली सुपर हीरो। अगर आप सुपर हीरो बनना चाहते हैं ना, तो आप वो तमाम गलतियां करेंगे जो कि आम इंसान करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। मेरी बातें सुने आप, उनको अपने साथ रखें, अगर नहीं रखेंगे तो कुछ सीखेंगे नहीं, ठीक है ना। और आगे चलें, आमना हो, इकरा सईद हो, कोई और लोग हो, आगे चलें। बस आधे घंटे मैंने खत्म कर देनी है बात, आगे चलें सर, चलें सर आगे। हाँ, वापस जाएं, वापस जाएं, वापस जाएं, पीली साइड। हाँ, जिन्ना रूल्स, बस आगे चलो ना यार, कहाँ जा रहे हो? जिन्ना रूल्स पे जाओ ना, जो मैं कह रहा हूँ वो करो ना। ये जो स्लाइड है ना, ये आपको बताती है जिन्ना औज पर है। औज का मतलब समझते हैं ना, जिन्ना औज पर है। सो जिन्ना इज नाउ द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब यहां से ना जिन्ना का सफर बदलना शुरू होता है लखनऊ पैक्ट के बाद, 1918 के बाद। तो 1920 से 1930 का जो पीरियड है ना मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी में, after he is married Rati Bai Jinnah, but that is the period when he slowly and gradually breaking away from the Congress, when he slowly and gradually moving towards the Muslim League, ठीक है। उसकी वजूहात क्या है? वो उसकी एक बड़ी वजूहात में से एक वजह ये है उनका क्लैश विद महात्मा गांधी। मैं महात्मा गांधी को एक बहुत बड़ा लीडर समझता हूँ। आपको बताता चलूं कि महात्मा गांधी को क्यों मारा गया। उनको इसलिए मारा गया कि आखिर में वो अपने हिंदू दोस्तों को कह रहे थे, भैया पाकिस्तान से वादा जो किया है वो पूरा करो, जो उनकी चीजें हैं उनको दो। तो नथुराम गॉडसे ने उनको मार दिया, ठीक है। आगे चले जी, अब आगे चले, चले चले आगे चले सर जनाब। तो बेसिकली इस स्लाइड पे आप सिर्फ पहली 4 लाइनें पढ़ लें। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था, छोटी सी बात। रॉलेट एक्ट, नासिर महमूद मुबारक हो आपको, आ गए आप, जबरदस्त, मैं बड़ा खुश हूं। एवरी टाइम समबडी जॉइन्स इन, जबरदस्त, आप बड़े सही टाइम पे आए नासिर महमूद, आखिरी आधा घंटा। और मैं एक्चुअली इसको आहिस्ता आहिस्ता क्लोजर की तरफ लेके जा रहा हूँ। और इससे पहले जो मैंने बातें की हैं वो ये हैं, जिन्ना कौन था, वो कैसा इंसान था, उसने किस औरत से इश्क किया। लोग कहेंगे पागल हो गए चौधरी, उसने किस औरत से इश्क किया, उसने कैसे मुसलमानों और हिंदुओं को इकट्ठे किया। और ये मैं अब यहाँ पे आपसे बात करना चाह रहा हूं कि डिफरेंस ऑफ अप्रोच है। भाई आप या मैं सियालकोट वाला वाकया क्या हम डिनाई कर सकते हैं? मैं उसके निटी-ग्रिटी में नहीं जाना चाहता। अरे भैया ये जिन्ना की लेगेसी नहीं है। जिन्ना तो कहता मुकालमा करो, असेंबली में जाओ, एक दूसरे से बेशक झगड़ो, लड़ो असेंबली में जाके। अरे भाई बात करो, बात करके जंग जीतो। जिन्ना साहब से एक दफा किसी ने पूछा, सर पाकिस्तान कैसे बना? अब वो लोग जो जिन्ना के ईगो की बात करते हैं ना, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट का है,
उन्होंने कहा पाकिस्तान, याद रखिएगा मेरे अल्फाज, पाकिस्तान वॉज मेड बाय माई सेल्फ एंड माई टाइपराइटर। सोचिए आप जिन्होंने कैसी बात की है। और भाई मुकालमा करो, बात करो। तो गांधी बेसिकली वायलेंट और सिविल डिसोबीडियंस चाहते थे, और जिन्ना नहीं चाहते थे। चुनांचे वहां से इनके रास्ते जुदा होने शुरू हो गए। फिर जाहिर है इसमें और मामलात आ गए। मैं इस पे आपको मैं आगे लेके जाना है। तो अगर अभी तक आप मोहम्मद अली जिन्ना को समझे तो क्या समझेंगे? एक जवान लड़का बिजनेस पढ़ने गया, लॉ में चला गया, एक्टिंग करने की कोशिश की, बाप ने बुलाया, वापस आ गया। ठीक है। नुस्ली वाडिया ने क्या कहा? भाई मेरा नाना बहुत ही इंटेग्रिटी वाला आदमी था, हमने जो कहा हमने वो किया, और जो हमने नहीं कहा वो हमने नहीं किया। ठीक है। सो ये बेसिकली आपको यहां तक ये समझ आ जानी चाहिए कि, और दरम्यान में जाहिर रती भाई उनको पसंद आ गई यार, हर मर्द और औरत का दिल है, मैं इस बारे में और आपसे क्या कहूं। ठीक है ना, इश्क इश्क होता है, वो होता है तो होता है, बस होता है। आप भी लोग भी करके देख लें अगर नहीं किया। ठीक है। तो एक्चुअली अब हम आगे चलते हैं। सो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं कहां पे जाके ब्रेक हुआ, और ब्रेक, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें प्लीज। कहां पे ब्रेक हुआ? भाई ब्रेक, आगे चलें, मुझे ये नहीं चाहिए, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। हाँ अब है, देखे ना, हाँ यहाँ पे रोक लें, बस यहाँ पे रोक लें जी। तो बेसिकली कहां पे जाके ब्रेक हुआ? ब्रेक वहां पे हुआ जहां पे के मोहम्मद अली जिन्ना की और गांधी की आपस में चपकले शुरू हुई, जहां पे के जिन्ना को समझ आई नहीं हिंदू नंबर 2 काम करने को तैयार है, ये हमें खा जाएंगे। चुनांचे 1927 की, ये मैं आपको उनकी 14 पॉइंट्स में से निकाल के लाया हूं कि आपने फरमाया कि जनाब हमें अब सिंध में इस्लाम, पाकिस्तान मुसलमान तशख़्ख़ुस चाहिए, हमें NWFP में चाहिए, हमें बलूचिस्तान में चाहिए, हमें पंजाब में चाहिए, हमें बंगाल में चाहिए। ये वो पहली चीज है जिससे कि जिन्ना साहब को कांग्रेस एक्यूज करती रही। ओहो जिन्ना बिट्रेड है ना, जिन्ना तो बहुत बड़ा बिट्रेल निकला, हमने इसको बनाया, देखे ना। हमने इसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सरबराह बनाया, तो ये तो दूसरी तरफ जाना शुरू हो गया। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई रिटेल पॉलिटिशियन, मैं बात रिटेल पॉलिटिक्स से शुरू करना चाहता हूं दोबारा, जब भी कोई रिटेल पॉलिटिशियन आगे जाता है तो वो खतरात को महसूस करता है। जब वो खतरात को महसूस करता है तो वो अपने, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो अपने आइडियल्स को गिराए बगैर अपने रास्ते की एडजस्टमेंट करता है। आइडियल्स थे जॉइंट इंडिया रहे। मैं आपको दावत दूंगा, क्योंकि मैं तारीख का तालिब इल्म रहा हूं, मैं आपको दावत दूंगा कि आप जरूर पढ़िएगा, आपको जब टाइम मिले, स्टैनले वॉलपर्ट को पढ़िएगा और कैबिनेट मिशन प्लान को जरूर पढ़िएगा। आखिरी दम तक मोहम्मद अली जिन्ना ये कोशिश करता रहा कि हम किसी तरह इकट्ठे रह लें, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को ये समझ आ गई थी कि इकट्ठे नहीं रह सकेंगे। सो मोहम्मद अली जिन्ना ने अल्हम्दुलिल्लाह as the time moved forward, he made his adjustments. And because of Gandhi and Nehru and everybody, I respect them. They are great leaders of India. I have many friends who live and work in India. भाई ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप जहां से दुश्मनी हो आपकी, वहां पे आपकी दोस्तियां नहीं हो सकती। मेरा एक बहुत बड़ा मुहिब दोस्त पिछले 30 साल का इंडिया बैठा हुआ है, तो वी एग्री टू डिसएग्री। तो जिन्ना को समझ आई कि नहीं ये इकट्ठे नहीं चल पाएंगे, तो जिन्ना ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी की तरफ ले जाना शुरू किया। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी इशू है जो कि मैंने आपको दिखानी तो आखिर में है, और वो डॉक्टर एलन कीसलर का एक वीडियो, वो देखिएगा जरूर, आप उसे अप्रिशिएट करेंगे। आगे चलेंगे, आगे चलें, सही है। सो अगेन ये पुरानी बात हो रही है, हम इसको स्किप करते हैं। आगे चलें सर, आगे चलें, बिल्कुल ठीक है। फिर अभी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल आ रही है। मैं आपको कोई मतलब खुतबात चौधरी फजले मुकीम नहीं करना चाहता। आगे चलें, आगे चलें, चलें ना जी, आगे चलें, चलें आगे चलें भाई। जब मैं कहता हूं आगे चलें तो आगे चलें, रोक लें। 1930 और 37 में एक तो इलेक्शन है, मैं उसका अगेन इलेक्शन में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक्चुअली अगर आप ये नीचे पढ़ लें, नेहरू ऑन द 1937 इलेक्शन ट्रेल, मैं पढ़ देता हूं आपको। देयर आर ओनली टू फोर्सेस इन द कंट्री, द कांग्रेस एंड द गवर्नमेंट, एंड बैक केम मुसलमानों का शेर मोहम्मद अली जिन्ना। He said, I refuse to line up with the Congress. There's a third party in this country and that is the Muslim. देख लें आप,
देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा, हमने जो कहा वो हमने किया। हमने देखा कि मुसलमानों का हाल कांग्रेस के साथ ठीक नहीं रहेगा। हमने गलतियां की होंगी, क्योंकि हम एक्चुअली कोई नबीजादे नहीं है, ना मोहम्मद अली जिन्ना था ना हम है। हमने गलतियां की होंगी, लेकिन हमने कभी इस बात को नहीं छोड़ा, जैसे नुस्ली वाडिया ने कहा, जिसकी मां पारसी हो गई मुसलमान होने से, पैदा मुसलमान हुई थी जिसकी एक्चुअली नानी जो थी वो पारसी थी और पारसी से मुसलमान हुई थी। देखो ना, वो भी कहानी चल रही साथ साथ। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें और गौर से देखें इसको। मैं अपना गला ऐसे खराब नहीं कर रहा, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें। लोग अपने रास्ते बदलते हैं। ओ भैया, लोग अपने रास्ते किसी प्रिंसिपल के बेस पे बदलते हैं। लोग अपने रास्ते इस बात पे नहीं बदलते कि मैं वजीर आजम रहूंगा या नहीं रहूंगा, मैं सदर पाकिस्तान बनूंगा या नहीं बनूंगा। लोग अपने रास्ते प्रिंसिपल्स पे डिफाइन करते हैं। सो व्हेन यू आर अ रिटेल पॉलिटिशियन, मैंने शुरू में डिफाइन किया था, रिटेल पॉलिटिशियन वो है जो कि अगले इलेक्शन का सोचता है। जब रिटेल पॉलिटिशियन मोहम्मद अली जिन्ना की तरह स्टेट्समैन बनता है और कायदे आजम बनता है, तो फिर वो अगली जनरेशन की सोचता है भाई। फिर वो रिटेल पॉलिटिशियन नहीं रहता, वो अपने प्रिंसिपल पे खड़ा होता है। आई रिफ्यूज टू लाइन अप विद द कांग्रेस। देयर इज अ थर्ड पार्टी इन दिस कंट्री एंड दैट इज द मुस्लिम। चलें जी, आगे चलें, चलें से चलें, चलें। हाँ ठीक है जी। हाँ, अब हर एक को पता है जी, वो 1940 का जो है वो क्या हुआ है जनाब, वो जबरदस्त किस्म का रेजोल्यूशन था। हमने 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 स्ट्रगल शुरू कर दी, पाकिस्तान स्ट्रगल। हम पाकिस्तान स्ट्रगल को जानते हैं और पहचानते हैं, ठीक है ना जी। हमने हिस्ट्री की किताबों में और इस्लामियात में पढ़ा है। सो ताहिर, नासिर महमूद, आमना वगैरह वगैरह वगैरह, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि वो कौन सी जगह है 1940 और 1947 के दरमियान में, जहां पे मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम बना। आप सुनना चाहते हैं, सुन ले। चलेंगे जी स्लाइड पे, चले ना जी। हाँ, अब पिछली स्लाइड पे यार, कहा क्या करते हो यार, यहां पर रोक लो। ये मैंने आपको डॉक्टर गुलाम नबी काजी का सितंबर 2019 का आर्टिकल का मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है। डॉक्टर जाल रतन जी पटेल, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को बताया, भाईजान मैं आपका पल्मोनोलॉजिस्ट हूं, मैं हिंदू हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इसी तरह काम करते रहेंगे तो आप मारे जाएंगे। नहीं तो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं फेथ से बोल रहा हूं, मैं आपको बताऊं, मेरा ख्याल है मोहम्मद अली जिन्ना शहीद है। यहाँ पे हर दूसरा एरा गैरा नथू खैरा शहीद हो चुका है मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा कोई शहीद नहीं है। उसको उसके डॉक्टर ने बताया, भाईजान मारे जाओगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने जाल रतन जी पटेल को कहा, ये मेरे एक्सरे नहीं निकलने चाहिए यहां से। और मैं आपको और कौन सी बात बताऊं, 25 दिसंबर को कौन सी बात बताऊं मैं आपको, जिससे कि आपको ये समझ आ जाएगी कि मुल्क के हालात अगर हैं ऐसे तो क्यों है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। मेरा किसी पार्टी से अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, जब रिटेल पॉलिटिशियन कायदे आजम बनता है, अभी आपने आखिर में एलन कैस्लर को सुनना है 15 मिनट रह गए। जब रिटेल पॉलिटिशियन, अगर कोई लोग आना चाहते हैं मजीद आ जाए, सुन ले मेरा आखिरी बयान ओ भैया, जब कोई रिटेल पॉलिटिशियन कायदे आजम बनता है तो भाई अपनी जान की कुर्बानी देता है, खुदा का वास्ता है, अपनी जान की कुर्बानी देता है। अब आप देख लें 1947 के बाद से अब तक वो कौन दे रहा है अपनी जान की कुर्बानी यहाँ पे। और लोगों को तो सदारतें चाहिए और वजारतें चाहिए, और मैं नाम नहीं लेता उनके, अल्लाह माफ करे मुझे, मैं उनसे कभी हाथ ना मिलाऊं वो दैट इज द स्टोरी ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, कुर्बानी दर कुर्बानी दर कुर्बानी। अब मैं आपको इस पे उस घटिया शख्स के बारे में बताना चाहता हूं, घटिया शख्स जिसका नाम लॉर्ड माउंटबेटन है। दो बातें और रहेगी, चलेंगे जल्दी करें, आगे चलें, आगे चलें।
जब एक्सरे फिल्म लॉर्ड माउंटबेटन के पास पहुंची, आगे चलें सिर्फ अगले वाले में, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, हाँ यहाँ पे, यार आप बहुत आगे चले गए, वापस जाएं, वापस जाएं, वापस जाएं, यहाँ पे रुक जाएं, बस यहाँ पे रुक जाएं, फिर वापस जाएं, क्या कर रहे हो यार, आगे जाओ, मेरी बात को सुना करो, रुक जाया करो वहां पे, ठीक है। एक आदमी था लॉर्ड माउंटबेटन, उसकी एक बेगम थी एडविना माउंटबेटन, उसका अफेयर था विद मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो जो कागजात थे ना, वो जिना को पेश किए गए, और इसको इस्तेमाल करो, जिना ने कहा सॉरी, आई एम नॉट अ रिटेल पॉलिटिशियन, आई एम फादर ऑफ अ नेशन। मैं ऐसी घटिया चीजें नहीं करता, मैं लोगों के जाती मसले नहीं लाता सामने। और ये वही लॉर्ड माउंटबेटन है जिसने डॉक्टर पटेल को या लेपी को बताया, अगर मुझे पता चलता कि जिना मर रहा है तो मैं इंडिपेंडेंस को डिले कर देता। वो समझो तो सही, तुम्हारा दुश्मन और दोस्त कौन है, समझो। आप में से जवान लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, समझे वो आपका दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। क्या मैं आखिर में, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं और इसके बाद एलन कीस्टर साहब का क्लिप आपको सुनाऊं और आपको बताऊं पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। अब मैंने भी तो कोई ओपिनियन दे रही है ना आपको, पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उससे पहले मैं आपको अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाऊं, खीरा न कर सका मुझे, आप वेस्ट में जाएं तालीम लेने, ओए उनकी तहजीब को ना वापस लेके आए, मेरे जुड़े हुए हाथों को देखें। अल्लामा इकबाल ने कहा खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का। अगर मैं जज्बाती हो तो बुरा ना बनाएगी। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। भाई आप नमाज पढ़े, रोजा रखें, दीन को तो देखें। कब्बा जो हंस की चाल चला अपनी चाल भूल गया, उसका कोई मकाम नहीं जिंदगी में। जो अपने घर को छोड़ गया, अपने रूट्स को छोड़ गया, उसका कोई मकाम नहीं जिंदगी में, सही है। तो अब आप देखें मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में वो बात। अब मैं आपको इसकी तमहीद बात दूं, इसको बेटे अपना क्या नाम है आपका, दानियाल, अपना साकिब इधर आइए, भाग के आइए। अब मैं इसके बाद आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं आपको तारीखी हवाला इसका ये दे रहा हूं। मेरे वालिद का नाम चौधरी फजल हक, पाकिस्तान के एक नामी ग्रामी सिविल ऑफिसर थे। मैं आज जो कुछ हूं उनकी वजह से हूं। और मेरे वालिद मोहतरम के एक दोस्त थे, उनका नाम था डॉक्टर सफदर महमूद मरहूम, वो भी पिछले साल 6-7 महीने में फौत हो चुके। तो मेरे वालिद ने एक वाकया नरेट किया किसी बहुत बड़े आलमे दीन के रेफरेंस से, अपने एक आर्टिकल में, जब वो जंग में लिखा करते थे। जनाब डॉक्टर सफदर महमूद ने उस वाक़े को सामने रखे एक आर्टिकल लिखा और कहा पाकिस्तान इज इंडिस्ट्रक्टिबल। अब मैं डॉक्टर एलन कीजलर की जबान में आपको उसका वीडियो दिखाना चाहता हूं, फिर मैं आपको वो आखिरी खत पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की बेगम ने उनको लिखा, और फिर मैं आपसे इजाजत मांगना चाहता हूं। आप बहुत बोले नहीं, लेकिन चलें कोई बात नहीं। तो लेट्स हैव द एलन कीजलर क्लिप, गौर से सुनिएगा। चलें जी, चलें, जल्दी करें। चलाएं। तो कहानी यह है कि 1934 में जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह लंदन में थे और फिर वो वापस आ गए थे इंडिया, मुंबई में पहुंचे थे, तो उनके सबसे करीबी दोस्त अल्लामा उस्मानी साहब, शबीर अहमद उस्मानी साहब, जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा उठाया था, पूछा था क़ायद आज़म से कि आप, हम सब बहुत खुश हैं आप वापस आ गए हैं, क्यों ऐसे, हम इतने सालों से दरख्वास्त कर रहे हैं आपसे कि आज हम वापस, आपकी ज़रूरत है, लेकिन आप नहीं आ रहे थे। क्या ऐलान में मेरे सबसे पहले फेवरेट लाइन, अल्लामा इकबाल ने कोई शेरी लिखी
जिसकी वजह से आप इसलिए वापस आए, या लियाकत अली खान ने आपको, या और किसी ने? क्यों आप? क्योंकि हम सब आपको वापस लाने की कोशिश में लगे थे और आप नहीं मान रहे थे, और फिर अभी आप पहुंच गए हैं जल्दी से, शुक्रिया। तो आप कैसे, क्या हुआ, किसने बताया? फिर क़ायद आज़म ने बताया था। ऐसी बात नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा हकीकत में क्या हुआ है, लेकिन एक शर्त पर कि आप किसी को न बताएं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ किसी को नहीं बताना। तो अल्लामा साहब शबीर अहमद उस्मानी साहब ने कहा ठीक है। फिर क़ायद आज़म ने बताया कि मैं लंदन में था, एक रात को मेरा पलंग हिल रहा था और मैं जाग गया था, इधर उधर देखा, पता नहीं पलंग ऐसे क्यों हिल रहा था। मैं फिर सो गया, दोबारा पलंग हिलने लगा इतने ज़ोर से कि मैं सोच रहा था कि एक ज़िलज़िला हो रहा है। तो मैं जाग गया था, उठ गया, बाहर निकला घर से, और मैंने देखा कोई और लोग बाहर नहीं निकले हैं, कोई बात नहीं हो रही है, कोई और आवाज़ नहीं, ज़िलज़िला नहीं हो रहा शायद। अगर ज़िलज़िला हकीकत में हो रहा था तो दूसरे लोग भी निकलेंगे। फिर सो गया था, तीसरी बार पलंग हिल रहा था। फिर मैंने जाग कर मैंने देखा एक शख्सियत वहाँ खड़ी है मेरे कमरे में। ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? तो मैं खड़ा हो गया था और मैंने पूछा अंग्रेज़ी में, क्योंकि ये लंदन में था, हु आर यू? और जवाब अंग्रेज़ी में, अव्वल दर्जे के ऑक्सफोर्ड अंग्रेज़ी में, आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद। जैसे शायद मुझे भी होता, जब कभी मैं होता तो बाल खड़े होते पूरे जिस्म में, है ना? ऐसे क़ायद आज़म को हुआ, What can I do for you, my Lord? फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अंग्रेज़ी में, You are urgently needed by the Muslims in the subcontinent. I order you to go there, to go back and lead the freedom struggle. Don't worry, I will be with you. You will succeed in your mission, inshallah. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं इंशाअल्लाह। इसलिए क़ायद आज़म को मालूम है पाकिस्तान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमें मदद कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। वापस जाएंगे। तो कोई साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं एंड पे आ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल एंड पे हूँ। मेरे पास अब सिर्फ 9 मिनट है। मैंने आपको सिर्फ इसकी कंक्लूडिंग आर्गुमेंट देनी है। अगर कोई कुछ कहना चाहता तो कह ले। डॉक्टर एलन केस्लर जो हैं वो कोई ऐसे बच्चे नहीं है कल के, आप उनको नेट पे जाके देख सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मैं तो वैसे उनका फैन हूँ, उसकी वजह है मैं वो यहाँ पे बयान नहीं करना चाहता। बट देखें, चलें, अगर कोई बात करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बात करें। अगर आप बात नहीं करते हैं तो बुरी बात है, बिकॉज मेरे ख्याल में क्या फायदा, क्या वो मेरे जोर लगाने का। अच्छा, इसके मुझे कोई पैसे तो मिल नहीं रहे, वो तो कोई मसला नहीं है। जोर लगाना है पाकिस्तान के लिए, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बात करेंगे तो जरा मजा आ जाएगा, और कोई मसला नहीं। जी सर, अब तक माशाल्लाह काफी पॉइंट आपने कवर भी किए हैं और हमने नोट्स भी लिए हैं। तो जी, अब तक बिल्कुल हम बिल्कुल काफी हद तक समराइज भी कर दिया है। खासकर आपने 2-3 बातें बड़ी अहम ये कही कि हालांकि जो उनकी उनको एक ये देखे ना, उनकी दोस्त थे, आपने कहा वो सारे उनके दोस्त थे, लेकिन उन्होंने ये एक सेक्रीफाइस किया, अपनी दोस्ती को भी इसके लिए सेक्रीफाइस किया, और उस चेंज को, जो कहते हैं ना चेंज आ रही है, तो आहिस्ता 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 करके उन्होंने उनकी यानी अपने कॉज के लिए अपनी दोस्ती तक को भी कुर्बान किया। जो उनके यानी आपने जो बड़े बड़े नाम लिए गांधी के और नेहरू के, जो उनके दोस्त थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए किया। तो एक तो चेंज को किया, दूसरा आपने कहा कि वो काफी अपनी एज के साथ इवॉल्व भी हुए माशाल्लाह, यानी 1910 में और फिर वहां से वहां तक उन्होंने हर चेंज को जो है उन्होंने अडॉप्ट किया। और ये भी एक बड़े लीडर की क्वालिटी है कि उन्होंने घबराए नहीं और ये किया। तो जबरदस्त सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विजडम। जबरदस्त। लेकिन ताहिर भाई, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ रहे। बाकी भी लोग मेरे साथ हैं, आमना भी हैं और बाकी भी लोग हैं, नासिर साहब भी आए, उन्होंने मुझे सुना। मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर में, और मैं आपको देखिए, ये इसको ना जहन से निकाल दीजिए, आप बिल्कुल निकाल दीजिए। मैं तो बहुत ही अदना तालिब इल्म हूँ तारीख का और उसका। अब मैं आपसे जाती बात, एक मैंने आपसे बांग्लादेश का वादा किया था, मैं आपको पूरी
समझदारी से मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूँ और आपको सुन लेनी चाहिए, क्योंकि अगेन ताहिर ने कहा कि भाई मुकालमे में तो फिर यही होगा ना जी, मैं भी अपनी ओपिनियन दूंगा, आप भी अपनी ओपिनियन देंगे। अच्छा, पहली बात ये है कि देखिए आप ये बड़े सिंपली सुन लें, मोहम्मद अली जिन्ना एक नॉर्मल आदमी था, उसने इश्क भी किया, उसने पैसा भी बनाया हलाल तरीकों से, ठीक है, और उसने कौम की खिदमत भी की। इन सारी चीजों में ना अगर आप मुझे कहें ना ये तस्बीह के दाने हैं मोहम्मद अली जिन्ना के, तो वो धागा क्या है? उस धागे पे खवातीनों हजरात 3-4 चीजें लिखी हुई हैं। एक कुर्बानी, दो इंटेग्रिटी, तीसरा ऑनेस्टी। और ये बड़ा गलत ख्याल हमने इस मुल्क में डाल दिया, स्पेशली बच्चों के लिए। आई एम हैप्पी कि ताहिर साहब के बच्चे देख रहे हैं, फिर ये वीडियो चला जाएगा, अपलोड हो जाएगा मेरी यूट्यूब पे, वहां से आप बेशक उतार के इसको जिसको देना चाहते हैं दें। देखें, ये जो कॉन्सेप्ट है ऑनेस्टी का ना, जो हमारे मुल्क में इवॉल्व हुआ है, और ये आज की बात नहीं, 70 ओ भाई, फाइनेंशियल ऑनेस्टी इज अ पार्ट ऑफ द टोटल पैराडाइम। You have to be financially honest, you have to be intellectually honest, and you have to be morally correct. मोहम्मद अली जिन्ना से रत्ती की शादी टूट गई। ओ भैया, कोई नहीं कहता मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कि उसने कभी किसी और, खुदा ना खास्ता, कोई और मॉरली गलत बात की हो। एक चीज मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जो कही जाती है, आप उसको भी इन्वेस्टिगेट कर लें कि जी वो कभी कभार शराब पी लेते थे, आप कर लें उसका इन्वेस्टिगेट, मैं आप पे छोड़ता हूं। बेसिकली मोरालिटी आप ये समझे, मोहम्मद अली जिन्ना से सबक लें। पॉलिटिकल मोरालिटी इज इंटेलेक्चुअल मोरालिटी, फाइनेंशियल मोरालिटी एंड योर पर्सनल मोरालिटी। मैं आपको दो नाम दे देता हूं, टेड कैनेडी, ठीक है जी, और मैं आपको अब्राहम लिंकन। आप जाके देख लो यार, मैं तो आपसे गलत बात क्यों कहूंगा, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, छोटा तालिब इल्म हूं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि जब तक आप कुर्बानी नहीं देते, ओ भाई, यू डोंट स्टैंड अ चांस। और कुर्बानी की बेहतरीन मिसाल मोहब्बत की कुर्बानी है। आप ये लेटर मैं आपको पढ़ाता हूं जो कि रती भाई जिन्ना ने, और ये नेट पे अवेलेबल है यार सब चीजें, कभी कभार टाइम निकाल लिया करें। अल्लाह जी वो लेटर दिखाएं मुझे, ऊपर से स्क्रॉल डाउन करें, जल्दी करें सर, हमें इसको खत्म करना है, 5 मिनट रह गए सर। उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का एक नारा भी लगाना है। चलें ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, ऊपर लेटर के ऊपर जाएं भाई। ये मेरे बच्चे भी जी मेरी तरह है, हाइपर है। अच्छा चलें, ये वो आखिरी लेटर है जब रती जिन्ना जो थी वो मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ गई, वापस अपने वालिद के पास नहीं गई। जाहिर है शी वाज अ रिच वुमन, चली गई लंदन, बीमार हो गई। ये आखिरी लेटर है जो कि एसएस राजपूताना जहाज था जिसपे वो ट्रेवल कर रही थी। और अभी रोक लें जी मैं आपको, और ये उन्होंने वहां से लिखा, मैं आपको जल्दी से लेटर का मतन पढ़ा देता हूं, एक पैराग्राफ पढ़ता हूं, और ये भी मैं बच्चों को कहूंगा कि आपको ईमेल कर दें सब चीजें। डार्लिंग, थैंक यू फॉर ऑल यू हैव डन। ये अब मोहम्मद अली जिन्ना को एड्रेस कर रही है रत्ती जिन्ना, और मैंने इस लेटर के ऊपर अपने तरफ से टाइटल लगाया है, प्यार के कागज पर दिल के कलम से। अरे भाई, प्यार के कागज पर और दिल के कलम से जो खत लिखे जाते हैं, अरे भाई, उन मुल्कों को और उन लोगों को खत्म नहीं किया जा सकता। फिर मैं आपको कुरान की आयत बताना चाहता हूं, और फिर मैं आपसे इजाजत मांगना चाहता हूं बांग्लादेश के बारे में एक बात बताने के साथ। डार्लिंग, थैंक यू फॉर ऑल यू हैव डन। If ever in my bearing your once tuned senses found any irritability or unkindness, be assured that in my heart there was place only for a great tenderness and a greater pain, a pain, my love, without hurt. When one has been as near to the reality of life as I have been dearest, one only remembers the beautiful and tender moments, and all the rest becomes a half-veiled mist of unrealities. Try and remember me, beloved, as the flower you plucked and not the flower you tread upon. आप इसको पढ़िए भाई। जिन्ना जिंदगी में 2 दफा रोए, जिन्ना जिंदगी में 2 दफा रोए। उनमें से एक दफा रोए जब जो पाकिस्तान आने से पहले अपनी बेगम की कब्र पे गए। The wife was buried as a Muslim. एक बात तो ये मैं आपको ये बता दूं कि भाई, अगर कुछ करना है तो कुर्बानी दो, कुर्बानी के बगैर राइट्स मत मांगो। अब मैं आपको बता रहा हूं एक वो चीज जो कि मेरे घर से जिसका ताल्लुक है। क्यों ऐसा होता है कि लोग लोगों को छोड़ जाते हैं? बांग्लादेश क्यों बना? सिर्फ एक छोटा सा वाकया। जगह है सिलहिट या खुलना,
ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है। एंड आई हैव मेनी बंगाली फ्रेंड्स एंड आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दोस बंगाली फ्रेंड्स। वहां पे मेरे वालिद मोहतरम पुलिस में थे। ये 1952 का 3 का वाक़या है। शेख मुजीबुर रहमान के बारे में वालिद साहब को हुक्म दिया गया कि आप इनको अरेस्ट कर लें। शेख मुजीबुर रहमान को मेरे वालिद ने हाउस अरेस्ट अपने घर में किया, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पे। मैं ये हर जगह कहता हूं लोगों को बताने के लिए, खुदा के लिए तारीख को वैसे समझो जैसे वो है, अरे वो ना बनाओ जो वो नहीं है। तो शेख मुजीबुर रहमान के साथ रात के खाने पे मेरे वालिद मोहतरम, जिनका नाम चौधरी फजल हक था, उनके क्रेडेंशियल्स आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट बैच ऑफ पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। शेख साहब को वालिद साहब ने कहा मुकालमे को देखिएगा, मुकालमे से बात शुरू की थी। शेख साहब आप क्यों हमसे इतने नाराज हैं और हमारे साथ नहीं रहना चाहते? भैया दिसंबर का महीना जा रहा है, वो गए तो छोड़ के आपको 71 में, ये मैं आपको सन 51-52 की बात बता रहा हूं। शेख साहब ने कहा चौधरी साहब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अब्बा ने कहा क्यों? इसलिए क्योंकि आप हमारी इज्जत नहीं करते। क्या मुझे कुछ और कहने की जरूरत है? मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, मेरे जैसे बूढ़े लोगों का काम यही है कि मैं आपको पास्ट से कनेक्ट करूं। आज से बेहतर दिन कौन सा हो सकता है? मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने लोगों को साथ लेके चलना है, भैया लोगों की इज्जत कीजिए। शेख मुजीबुर रहमान ने जो कुछ किया और लोगों ने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया, अगर किया, माजरत के साथ आप किसी का भी नाम ले लें, आजकल मंजूर पश्तीन का नाम चल रहा है। मैं सियासी आदमी नहीं हूं, मैं आपको पाकिस्तान की बात करूं। भैया लोगों को साथ लेके चलिए। आप लोगों को साथ लेके चलेंगे तो पाकिस्तान आगे चलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी। मैंने आज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खातिर आपके सामने ये बात पेश की। अल्लाह करे मेरी ये बात कबूल हो। अल्लाह करे कि डॉक्टर एलन कैस्लर ने जिस ख्वाब को आपके सामने पेश किया, और वो ख्वाब जो मेरे वालिद साहब के रेफरेंस से डॉक्टर सफदर महमूद ने अपने आर्टिकल में लिखा, वो ख्वाब कभी डिस्ट्रक्ट नहीं होगा। ख्वातीनो हज़रात, नबी की बात कभी गलत नहीं होती। पाकिस्तान विल स्टे, पाकिस्तान विल थ्राइव, पाकिस्तान विल गेट एन एक्सीलेंट लीडर, एंड पाकिस्तान विल थ्राइव बिकॉज पाकिस्तान हैज अ ग्रेट एंड ब्रिलियंट फ्यूचर, बिकॉज पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा आहनी एसेट है और वो है पाकिस्तान का यूथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।